یہ مووی ایک سائنس فکشن بک اینیمی مائنڈ سے ماخوذ ہے۔ اس کہانی میں دو کریکٹرز ہیں، ایک انسان اور ایک ایلین، جو ایک لمبے عرصے تک ایک پلانٹ پہ اکٹھے پھنس جاتے ہیں۔ اس مووی کے آغاز میں بتایا جاتا ہے کہ دنیا کے ریسورسز استعمال کرنے کے بعد انسانوں نے زمین جیسا ہی ایک اور پلانٹ ڈسکور کرنے کا فیصلہ کیا تاکہ وہاں آباد ہوا جا سکے۔ اس لیے اسپیس سائنٹسٹ نے اسپیس میں نئے پلانٹس ڈسکور کرنا شروع کیے۔ اس دوران ان کا سامنا ایک دوسری مخلوق سے ہوتا ہے جن کے بارے میں معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے بھی انسانوں ہی کی طرح اسپیس کی دنیا میں نئی ڈسکوریز کرنے کے لیے ایفرٹس کی ہیں۔ جب یہ دونوں اسپیشیز یعنی انسان اور ایلینز ایک دوسرے کے مد مقابل آتے ہیں تو ایک دوسرے کو اپنا دشمن سمجھ لیتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ برسرے بیکار ہو جاتے ہیں، یعنی جنگ شروع کر دیتے ہیں۔ انسانوں نے بڑے بڑے اسپیس اسٹیشنز اسپیس میں انسٹال کیے تھے جن پر ایلینز حملہ کر دیتے ہیں۔ جنگ شروع ہو جاتی ہے۔ ڈیوڈ نامی ایک اسپیس رینجر ایلین کے بہت سے اسپیس کرافٹس کو تباہ کر دیتا ہے۔ اتنے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ایلین راکٹ نے انسانوں کے کچھ راکٹس کو تباہ کر دیا، جس کا بدلہ لینے کے لیے ڈیوڈ ان کے راکٹس کو چیز کرنا شروع کرتا ہے۔ دشمن رینجرز کی نیت بھانپ جاتے ہیں، وہاں سے دور نکل جاتے ہیں اور ڈیوڈ بھی ان کو فالو کرتا ہوا ان کے پیچھے چلا جاتا ہے۔ ڈیوڈ ان کے کئی اسٹیشنز کو تباہ کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، لیکن اسی بیچ انہوں نے اپنی پوزیشن اور رینج کا خیال نہیں کیا۔ اب وہ دونوں یعنی ایلین اور ڈیوڈ ایک دوسرے پلانٹ پر آ چکے تھے۔ یہاں کسی چیز سے ٹکرانے کی وجہ سے اس کا کرافٹ کریش ہو جاتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ جس ایلین پر اس نے اٹیک کیا تھا اس کا کرافٹ تو ڈسٹروائے ہو چکا، لیکن وہ ایمرجنسی کیپسول میں بیٹھ کر سیف لینڈنگ کر چکا تھا۔ ڈیوڈ کا کو پائلٹ مارا جا چکا تھا۔ یہ پلانٹ ایک ویران اور بنجر جگہ تھی۔ اس کا کرافٹ اور کمیونیکیشن ایکوپمنٹس سبھی تباہ ہو چکے تھے۔ اس کے پاس مدد بلوانے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ ادھر ادھر بھٹکنے کے بعد اسے ایلینز کا راکٹ نظر آتا ہے۔ وہ اس کی طرف بڑھتا ہے۔ ڈیوڈ کو پتا چلا کہ ایلین راکٹ میں ایک خاص طرح کا لیکوڈ ہے جو کہ پیٹرول کی طرح آگ پکڑتا ہے۔ وہ ایلین کو مار دینے کی نیت سے تلاش کر رہا تھا۔ کچھ دیر بعد اسے ایلین نظر آ جاتا ہے۔ وہ اپنی گن سے اس پر نشانہ تان لیتا ہے، مگر اسی لمحے وہ سلپ ہوتا ہے اور نیچے گر جاتا ہے۔ اس شور کی وجہ سے ایلین چوکنا ہو جاتا ہے، لیکن ڈیوڈ چھپ جاتا ہے۔ کئی گھنٹوں تک وہ وہاں چھپا رہتا ہے اور پھر موقع ملتے ہی وہ دوبارہ اپنے چاقو کی مدد سے اس پر حملہ کرنے کی نیت کرتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ ایلین اپنے راکٹ سے کچھ بال نما چیز نکال کر کھا رہا ہے۔ اسی دوران بارش شروع ہو جاتی ہے۔ ایلین بارش انجوائے کرنے اور سوئمنگ کرنے پانی میں کود جاتا ہے۔ ڈیوڈ اسے موقع سمجھتے ہوئے ایلین کے راکٹ کے پاس جاتا ہے، اس کا فیول نکالتا ہے اور پانی میں ڈال کر آگ لگا دیتا ہے۔ اس پر وہ بہت خوش اور ایکسائٹڈ ہو رہا ہوتا ہے کہ وہ ایلین کو مارنے میں کامیاب ہو گیا، اور پھر ایلین راکٹ کے پاس جا کر کھانے کو کچھ نکالنے لگتا ہے، مگر جیسے ہی وہ راکٹ کو ٹچ کرتا ہے اسے زوردار کرنٹ کا جھٹکا لگتا ہے۔ اسے وہاں سے دور کرتے ہوئے ایلین اس کی جان بچاتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آگ نے ایلین کو نقصان نہیں پہنچایا کیونکہ ایلینز کی سکن انسانی سکن جیسی نہیں ہوتی۔ ڈیوڈ بے ہوش ہو چکا تھا۔ ایلین اسے باندھ دیتا ہے اور بیٹھ کر کھانا کھانے لگتا ہے۔ ہوش میں آنے پر ڈیوڈ ایلین کو بلاتا ہے۔ ویسے تو انہیں ایک دوسرے کی لینگویج نہیں آتی، لیکن ایلین کچھ نہ کچھ انسانی زبان سمجھ سکتا تھا۔ ڈیوڈ کا بھوک سے برا حال تھا۔ وہ اس سے کچھ کھانے کو مانگتا ہے۔ ایلین اسے اپنا کھانا دینے سے منع کر دیتا ہے، لیکن پھر اسے ایک انسیکٹ کھانے کو دیتا ہے۔ اگرچہ ڈیوڈ اسے کھانا نہیں چاہتا تھا، لیکن مرنا بھی نہیں چاہتا تھا، اس لیے اسے انسیکٹ کھانا پڑا۔ اتنی دیر میں آسمان سے میٹرائٹس کی بارش ہونے لگتی ہے۔ یہ آگ کے گولے انہیں جلا سکتے تھے، اس لیے ایلین پیچھے موجود ایک غار میں بھاگ جاتا ہے۔ جاتے ہوئے وہ ڈیوڈ کے پاؤں کی رسی کھول دیتا ہے تاکہ وہ چاہتا تو اسے مرنے کے لیے چھوڑ سکتا تھا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ غار کے اندر آنے پر کچھ ٹائم کے بعد اس نے ڈیوڈ کے ہاتھ بھی کھول دیے۔ موقع ملتے ہی ڈیوڈ اسے مارنا چاہتا تھا، لیکن وہ بھی ایسا نہیں کرتا۔ پھر وہ غار سے باہر نکل آتے ہیں۔ میٹرائٹ کی بارش رک چکی تھی، لیکن اس آگ نے ایلین کرافٹ کو نقصان پہنچایا تھا۔ اب اس میں سے کرنٹ نہیں نکل رہا تھا۔ ڈیوڈ اس کرافٹ میں سے کچھ کھانا چرانے جاتا ہے، لیکن اتنے میں ایلین آ جاتا ہے۔
वो उसे मारने ही वाला था कि डेविड ने कहा, प्लीज मुझे मत मारो, समझने की कोशिश करो, ये जगह बहुत खतरनाक है, हमें यहाँ से निकलना है, इसके लिए जिंदा रहना जरूरी है, सो हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, हमारे अलावा यहाँ और कोई नहीं। डेविड कहता है कि जिस जगह मेरा क्राफ्ट क्रैश हुआ था वो एक जंगल था, हमें वहां जाना चाहिए, वहां हमारे बचने के चांसेस ज्यादा हैं। एलियन को डेविड पर अगरचे एतबार तो नहीं था, लेकिन कोई और ऑप्शन भी नहीं थी। बहरहाल वो डेविड के साथ जंगल की तरफ बढ़ने लगता है। रास्ते में उन्होंने मुख्तलिफ इकसाम के जानवर देखे, कुछ कछुए जैसे और कुछ सांप जैसे। उन्होंने मुख्तलिफ जगहों पर गड़े बना रखे थे शिकार करने के लिए। जंगल पहुंचने पर उन्हें इस बात की फिक्र थी कि दोबारा मेट्रॉइड्स की बारिश हो गई तो यहाँ सरवाइव कैसे करेंगे, क्योंकि यहाँ तो गारे नहीं हैं। डेविड लकड़ियां और पत्थर इकट्ठे करता है और बहुत मेहनत से एक शेल्टर बनाता है, लेकिन इतनी देर की गई मेहनत चंद सेकंड में न टिक सकी। इस पर एलियन उसका बहुत मजाक उड़ाता है। बहरहाल अब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। अब उन्हें समझ आ चुकी थी कि जिंदा रहने के लिए उन्हें साथ रहना होगा। कई रातें गुजर जाती हैं, लेकिन हालात जूं के तूं थे। अब वो एक दूसरे की लैंग्वेज भी समझने लग गए थे। डेविड शिकार करके लाता, कभी कछुओं का तो कभी कुछ और। एक दिन शिकार करते वो खुद एक शिकारी जानवर के घड़े में गिर जाता है। इसी लम्हे वो शिकारी जानवर जमीन से नमूदार होता है और उसे पकड़कर जमीन के अंदर खींचने लगता है। डेविड मदद के लिए पुकारता है। एलियन इसकी चीखें सुनकर वहां आ जाता है और उस शिकारी को अपने वेपन से मारकर डेविड को बचा लेता है, लेकिन डेविड बहुत जख्मी हो चुका था। एलियन उसका इलाज करता है जिससे वो ठीक हो जाता है। उन दोनों के बीच दोस्ती हो चुकी है। वो शिकार करके गुजारा कर रहे थे। फिर डेविड को आइडिया आता है कि जिन जानवरों का हम शिकार करते हैं उनके खौल बहुत मजबूत हैं, उनको इस्तेमाल करके शेल्टर बनाया जा सकता है, और वो बिलआखिर शेल्टर बनाने में कामयाब हो गया। अब रहने के लिए उनके पास शेल्टर था, खाने के लिए शिकार था। कुछ रोज बाद मेट्रॉइड की बारिश होना शुरू होती है, जिससे बचने के लिए वो अपने शेल्टर की तरफ भागते हैं, लेकिन डेविड की टांग जख्मी होने की वजह से वो गिर जाता है। एलियन किसी तरह इसे खींचता हुआ शेल्टर के अंदर ले आता है। अंदर आने के बाद डेविड एलियन पर चीखता है कि तुम किस कदर सुस्त और निकम्मे हो, मैं तुम्हारे कितने काम करता हूँ और तुम मुझे अंदर लाने में भी सुस्ती कर रहे थे। दोनों के दरमियान में झगड़ा हो जाता है। अगले दिन डेविड यहाँ से निकलने के बारे में प्लान करने लगता है कि बस बहुत हो गया, मैं मजीद यहाँ नहीं रह सकता, मुझे हर सूरत में यहाँ से निकलना है। डेविड एलियन को भी चलने का कहता है, लेकिन एलियन जाने से इनकार कर देता है। डेविड काफी मर्तबा इससे पूछता है कि आखिर क्या वजह है, लेकिन वो खामोश रहता है और कोई वजह नहीं बताता। डेविड जाते हुए उसे वादा करता है कि वो वापस जरूर आएगा, लेकिन अभी मुझे हर सूरत जाना है। उन्हें वहां रहते हुए 1 साल से ज्यादा का वक्त गुजर चुका था। एलियन डेविड से कहता है कि अगर तुम वापस ना आए तो, जिस पर डेविड उसे कहता है कि फिर तुम समझ लेना कि मैं मर गया। उसके बाद डेविड सफर पर रवाना हो जाता है। काफी रोज इस प्लेनेट पर अकेला इधर उधर भटकता रहता है, लेकिन उसे कोई वापसी का रास्ता नहीं मिलता। अब इतना वक्त गुजर चुका था कि उस प्लेनेट का मौसम तब्दील हो चुका। शदीद सर्दी से उसका बुरा हाल था। चलते चलते वो ऐसी जगह पहुंचा जहां से उसे इंसानों का कुछ सामान मिला, जिसे देखकर वो बहुत खुश हो गया। इसे यकीन हो गया था कि अब वो बच जाएगा, क्योंकि यहाँ इंसान रहते हैं जो इसे बचा लेंगे। उसे वहां एक माइनिंग फैक्ट्री मिलती है जहां इंसान काम कर रहे थे। उन्होंने एलियंस को अपना गुलाम बना रखा था। वो एलियंस के साथ बहुत बुरा सलूक कर रहे थे। डेविड अपने दोस्त के लिए परेशान हो जाता है, अगर ये इंसान उस तक पहुंच गए तो ये उसे भी अपना गुलाम बना लेंगे, और ऐसा वो हरगिज नहीं होने देगा। वो वापस अपने दोस्त के पास चला जाता है। वहां जाकर वो उसे इंसानों की इस माइनिंग फैक्ट्री के बारे में कुछ नहीं बताता। वो देखता है कि एलियन की तबीयत बहुत खराब है और हालत बिगड़ती जा रही है। डेविड ये जानकर हैरान रह जाता है कि वो एलियन प्रेग्नेंट था। उसने बताया कि हम खुद ही मेल और फीमेल होते हैं, एक उम्र के बाद हम एक बच्चा पैदा करते हैं और फिर मर जाते हैं। ये बात जानकर डेविड बहुत दुखी हो गया कि उसके दोस्त का आखिरी
आखिरी वक्त चल रहा है, वो उसका बहुत ख्याल रखता। एलियन ने अपने बच्चे के लिए कुछ कपड़े भी बनाए हैं। एक रात एक बहुत बड़ा जानवर उन पर हमला कर देता है। वो जानवर एलियन को काबू कर लेता है और वो इतना बड़ा होता है कि वो एक ही वक्त में उसे मुकम्मल खा जाता। डेविड बहुत मुश्किल से खुद को और उस एलियन को उस जानवर के चुंगल से बचाता है और मौका मिलते ही उस जानवर के मुंह में आग डाल देता है, जिससे वो मर जाता है। ये दोनों इससे बचकर वहां से भाग जाते हैं। शदीद मौसम में भागते भागते उन्हें बिल आखिर एक गार मिल जाती है। वहां पहुंचकर एलियन डेविड का शुक्रिया अदा करता है और फिर उसे अपने दिल की बातें बताने लगता है। एलियन ने कहा कि जो मेरा बच्चा होगा तुम उसका नाम सिम्स रखना और तुम इससे बहुत प्यार करना। तुमसे हो सके तो मेरे बच्चे को मेरे प्लेनेट पर छोड़ आना। डेविड उसे वादा करता है कि अगर वो यहाँ से निकल पाया तो वो अपना वादा जरूर पूरा करेगा। कुछ रोज बाद हम देखते हैं कि एलियन का बच्चा पैदा हो जाता है और उसके साथ ही वो एलियन मर जाता है, जिस पर डेविड बहुत दुखी था। लेकिन अब उसे अपनी जिंदगी का मकसद मिल चुका था। उसे अब इस छोटे से एलियन को पालना था और उसे उसके घर पहुंचाना था। वो उससे बहुत प्यार करता है। डेविड ने सिम से कोई बात नहीं छुपाई थी। उसने उसे बताया कि हम किस तरह यहाँ पहुंचे और कैसे तुम्हारे डैड की मौत हुई। बेबी एलियन जब उसे पूछता कि हम दोनों एक दूसरे से मुख्तलिफ क्यों हैं, तो वो बहुत प्यार से उसे सब कुछ बताता कि हम दोनों अलग अलग प्लेनेट से हैं, इसलिए हम मुख्तलिफ हैं। तुम्हारी दुनिया मुख्तलिफ है और मेरी मुख्तलिफ। तुम्हारी 3 उंगलियां हैं और मेरी 5। डेविड ने उसे छोटे एलियन को की लैंग्वेज भी सिखाई थी। काफी वक्त गुजर जाता है। एक दिन वो देखता है कि स्पेस स्टेशन उनके करीब उतरता है। डेविड पहचान जाता है कि ये माइनिंग वालों का स्टेशन है। अगर उनकी नजर बेबी एलियन पर पड़ जाती है तो वो उसे अपना गुलाम बना लेंगे, इसलिए वो उसे अपने साथ लेकर यहाँ से दूर चला जाता है। जैसे ही एलियन को ये बात पता चली कि डेविड के प्लेनेट के लोग यहाँ आए हुए हैं, तो वो सोचता है क्यों ना हम उनसे मिलें और वो यकीनन हमें हमारे घर पहुंचाने में हमारी मदद कर सकते हैं। वो ये सोचकर एक दिन माइनिंग फैक्ट्री चला जाता है। वहां सब कुछ देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि डेविड तो मेरे साथ ऐसा सलूक नहीं करता, बल्कि वो तो बहुत प्यार से पेश आता है। इसी असना में 2 इंसानों की नजर उस छोटे एलियन पर पड़ जाती है। वो इसे पकड़ लेते हैं। छोटा सिम्स उनसे बचने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो इंसान उसे पकड़ लेते हैं और टॉर्चर करते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डेविड उसे तलाश कर रहा होता है। उसे अंदाजा हो चुका था, इसलिए वो अपने हथियार उठाता है और उसे बचाने के लिए फैक्ट्री की तरफ भागता है, जहां उसे बेबी एलियन नजर आ जाता है। उसे बचाने के लिए डेविड इंसानों पर हमला कर देता है, जिस पर वो इसे अपना दुश्मन समझ लेते हैं और गोली मार देते हैं। मरे हुए इंसानों को ये लोग रॉकेट के जरिए स्पेस में वापस भेज देते थे। ऐसा ही उन्होंने डेविड के साथ किया। उसकी बॉडी को चेक करते हुए उन्हें एक लॉकेट मिला जो कि डेविड को एलियन ने दिया था। उसे निकालते ही डेविड को होश आ जाता है। उसने एग्जामिनर का गला पकड़ लिया, जिस पर उन्हें पता चला कि ये डेड बॉडी नहीं है, लिहाजा इलाज के लिए उसे हॉस्पिटल भेज दिया गया। उसकी आइडेंटिटी मालूम करने पर उन्हें पता चला कि वो एक स्पेस रेंजर था जो कुछ साल पहले एक जंग के दौरान स्पेस में फंस गया था। वो हैरान थे कि ये इतने साल प्लेनेट पर सरवाइव कैसे कर गया। डेविड को वापस स्पेस स्टेशन पहुंचाया जाता है। यहाँ वो तमाम साथियों को बेबी एलियन के बारे में बताता है, लेकिन वो उस पर यकीन नहीं करते। वो वापस जाने का फैसला करता है। इस बात पर कोई खुश नहीं था, लेकिन बहरहाल वो फैसला कर चुका था क्योंकि उसे बेबी एलियन को हर सूरत बचाना था। लिहाजा वो ऐसा ही करता है और वापस प्लेनेट की तरफ निकल जाता है। वो वहां पहुंचते ही माइनिंग एरिया जाता है और वो सबसे पहले बेबी एलियन के बारे में पूछता है, लेकिन ना तो कोई इंसान और ना ही कोई एलियन उसे कुछ बताने को तैयार थे। असल में एलियंस इंसानों को अपना दुश्मन समझते थे, लेकिन जब उन्होंने डेविड को बेबी एलियन के लिए दुखी और परेशान होते देखा तो वो उसे सब कुछ बताने के लिए रजामंद हो जाते हैं और वो बताते हैं कि वो बेबी एलियन एक जेल में बंद है।
डेविड जैसे ही जेल के एरिया में पहुंचता है, वर्कर्स के हाथों पकड़ा जाता है। बदकिस्मती से वो एक और वर्कर्स बहुत सारे थे, लेकिन फिर हम देखते हैं कि डेविड के साथी स्पेस क्राफ्ट में डेविड के पीछे आ जाते हैं। डेविड की मौजूदगी की वजह से बाकी एलियंस में भी हिम्मत आ जाती है और वो भी अपने लिए लड़ने के लिए खड़े हो जाते हैं। वो डेविड का साथ देते हैं और दूसरे इंसानों के खिलाफ मैदान में उतर आते हैं। अब डेविड भी बेबी एलियन सिम्स को बचा लेता है। अब उसके पास अपना स्पेसक्राफ्ट था। अब उसने फैसला किया कि वो अपने दोस्त से किया हुआ वादा पूरा करेगा और सिम्स को उसके प्लैनेट पहुंचाएगा। डेविड अपने साथियों की मदद से सिम्स को उसके प्लैनेट पर उसके अपने लोगों तक पहुंचा देता है। एलियंस डेविड के इस एक्शन पर बहुत हैरान और खुश थे। इंसानों को लेकर जो उनके ख्यालात थे वो तब्दील हो गए थे। डेविड उनसे बात करता है कि ये गैलेक्सी बहुत बड़ी है, हम सबको अपने अपने रहने के लिए बहुत सी जगह मिल जाएंगी अगर हम तलाश करें तो। जंग करने और एक दूसरे से नफरत करने से कोई फायदा हासिल होने वाला नहीं है। इस पर मूवी का इख्तिताम और अमन का आगाज हो जाता है।